जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अमित मालविया और राजदीप सरदेसाई की वीडियो को। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। तो फिर आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। No. Okay, You're with the national conference, but Amit Malviya respond to that because there was also a lot invested in Jammu and Kashmir, and the fact is the BJP has been blanked out in the valley. The fact is the independent strategy doesn't seem to have worked to the same extent in Jammu and Kashmir. Independents who could be supported by the BJP. Article 370 out, but the people of Jammu and Kashmir, and particularly Kashmir Valley, have stood with the NC Congress. So while you have every right to claim a major victory in Haryana, the opposition will claim a major victory in J&K. Okay, so let's look at the J&K numbers. The National Conference Alliance, which is National Conference and the Congress put together, are leading in about 50 seats. Let me ask you a question. How many of these seats is actually the Congress? They are probably 9 seats right now in single digit. So it's a national conference performance that the Congress is leaning on. Therefore, my question is that under Rahul Gandhi's leadership, they are trailing in 8 out of 12 seats where he held the Yatra in Haryana, and in J&K they are just about ahead on 9 seats. So when you say NC plus, let's break it up. Let's look at how many NC seats, how many Congress seats. Secondly, the BJP contested in just about 19 seats in the Kashmir Valley, of which we were a serious player in about 2 seats. So for us, if we haven't done well, it is not for any other reason. It is because the BJP did not pursue the Kashmir electorate with that kind of ferocity, and everybody else, given the background, participated in this election, whether they're independents, whether it's Jamaat, whether it's Rashid Engineers Party, Altaf Bukhari or Sajjad Lone. Now come to the BJP's performance, which is predominantly in the Jammu region. We have won, or we are leading in 29 seats, which is better than our performance last time. What do you want from us? So Okay, naturally, in Jammu, of course, there are more. We must Your performance is better because there are. Sir, your performance is better, but there are also more seats now that there are in the valley. There were in Jammu, there were 37. It's now up to 43. So it's proportional. But the point is, therefore. No, but let's get Supresh to respond to this charge. Can I make a point, please? No, 1 second. 37 saying 43, Amit Malviya is making the charge 29. that out 2 out of every 3 seats where Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra went, Supraji, Amit Malviya says the Congress is trailing in Haryana in 8 out of 12 assembly constituencies where Rahul Gandhi did his big Bharat Jodo Yatra. How do you respond to that? No, I first want to respond to what was said on Jammu and Kashmir, and none of you had a counter question to this. The spokesperson of India's ruling party says we did not pursue the electorate in Kashmir. Why not? Are they not citizens of this country? You run away from Anantnag, Rajouri, Baramulla and Srinagar in Lok Sabha, and now the national spokesperson of the BJP comes here and says, we did not pursue the voters in Kashmir. Why did you not? The reality is that Jammu Kashmir was reduced for the first time since independence. A state was stripped off its statehood, reduced to a union territory. They have subjugated you, they have rejected you. I don't understand how else do you read this verdict. The fact that the ruling party comes and says we did not pursue voters in a certain section of this country. Why not? We pursue voters in every section of the country, whether we win or lose, because that's what political parties are meant to do. You can't say we don't pursue a certain electorate, but we pursue certain others. I think it's a very, very serious food for thought that has been said here. It's a very decisive and a very, very, rejection of the BJP. It's a very divisive thing to say, but I don't know. It didn't raise issues with any of you. The reality is that the BJP let loose people like Engineer Rashid, who weren't allowed to campaign for their own Lok Sabha elections, but were allowed to campaign for the Vidhan Sabha, and look where they ended up. So I do think that Jammu and Kashmir should also be discussed with as much fervor. Just because the BJP has been squarely rejected there, I don't think we can look the other way. But I do want to come back to Haryana. Ma'am, just a minute. Ma'am, I maintain my position. Ma'am, would you accept? And I maintain my position. These numbers will change. You are saying the numbers will change, but will you position. accept? Will you accept if these numbers hold? Will you accept that if these numbers hold, it's a major setback or not? Haryana specifically.
These numbers won't hold. So why will I make silly assumptions? I'm not here to make silly assumptions. These numbers will change. And all of that has been said will be now looked at in a very different context. Both from What's the your BJP, number? from your panelists and fellow panelists. What's your number, I ma'am? do believe these numbers will change. I'm absolutely confident about that. What's your number? What's your number? What are I think your... we'll be in a comfortable position to form the government. We will be in a comfortable position to form the government with majority. I can tell Amit you that. Malviya, what impact do you think BJP winning Haryana will have on the assembly elections of Maharashtra, Jharkhand, Delhi and Bihar? Does this give your party extra confidence, a spring in your step as you hit the next big Maharashtra elections? Look, Rahul, I am not going to be foolish like your other panelists and anchors who wrote our obituary during the exit poll. Let me just say it, every election is a different election. Every election is a new election. The BJP fights with all its resources. We have a great inroads in the society. We reach out to people. And of course, if you talk about sentiment, this will carry on to Maharashtra and Jharkhand, which we were anyway confident of doing very well and winning on our own merit. Delhi, Bihar is too far. I mean, these are the kind of conversations urban Naxals have in their drawing rooms. Imagine revolutions which never go beyond university campuses and come on television and give these theories. Those days are over. You should realize and be humble that the BJP is not going anywhere. The BJP has demonstrated this in Haryana. And let me tell you, for the benefit of your viewers, these numbers won't change because the seats on which BJP is leading, the margin is massive. Whereas the seats where the Congress is leading, the margins are very wafer thin. So if at all these numbers change, the BJP's majority will increase, the Congress will further go down. And again, we need to ask ourselves how many seats did the Congress under Rahul Gandhi's leadership is leading or winning in Jammu and Kashmir, and it is मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें और अपना राय व्यक्त कर सकें। तो फिर इस वीडियो में जो कांग्रेस है उसकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत थी, बीजेपी की जो आईटी सेल के हेड है अमित मालविया थे और कांग्रेस के सपोर्टर जर्नलिस्ट जो राजदीप सरदेसाई हैं वो थे और थोड़ा सा बीजेपी के तरफ से लीन करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं मिस्टर राहुल कंवल थे। तो फिर ये सब लोग थे और इस वीडियो में बात हो रही थी जो इलेक्शन है हमारा, जो हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का, उसके ऊपर बात हो रही थी। और आप लोगों को पता ही है कि ये इलेक्शन का रिज़ल्ट अभी आ गया है। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले हुआ था एक एग्ज़िट पोल और एग्ज़िट पोल से माहौल बनाया गया था कि ये जो पूरे जाट लोग हैं, पूरे दलित लोग हैं, पूरे दूसरे जो कास्ट हैं, ओबीसी कास्ट के लोग हैं, सब के सब बीजेपी के अगेंस्ट हैं। वो बीजेपी का जो एक सबका साथ सबका विकास उसके कारण और बहुत कुछ कारण के कारण नहीं, बीजेपी के साथ ही नहीं है ये सब लोग और वो कांग्रेस के साथ हैं क्योंकि कांग्रेस ने बोला है कि जितनी आबादी उतना हक, ये सब बोल के कांग्रेस के साथ हो गए हैं सबके सब। और एग्ज़िट पोल में भी यही दिखा रहे थे, JNK में तो ये दिखा रहे थे कि एक फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट होगा, जो जम्मू में बीजेपी इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट पार्टी और कश्मीर में फ्रैक्चर्ड होगा क्योंकि उधर बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लगा कर रख दिया था। और जैसे रशीद इंजीनियर, एक रेडिकल बंदे थे, बिल्कुल इस्लामिस्ट थे, कट्टर बंदे थे बिल्कुल, उस बंदे को रख दिया था बीजेपी ने, उधर छोड़ दिया था जेल से ताकि वो अपने लोगों को इलेक्शन में लड़ा सके। पर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ वो बाद में बताता हूँ आप लोगों को। और जो एग्ज़िट पोलस्टर्स ने बोला था कि हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ है उसका जो रिज़ल्ट है वो होगा कांग्रेस के साथ, कांग्रेस 75 सीट्स मैक्सिमम जीत सकता है, उस पोलस्टर्स ने बोला था, और मिनिमम तो 50 तक जीत सकता है। तो फिर इस इलेक्शन के जो पोलस्टर्स थे उन्होंने ये हेज किया था बेट कि जो 24 का इलेक्शन हुआ था वैसे इधर भी होगा। और
उसका पूरा उलटफेर हो गया। और ये पोलस्टर्स का जो एक रिकॉर्ड था, पहले वाले इलेक्शन का रिकॉर्ड था, उसी रिकॉर्ड में कायम रहे, बिल्कुल नकारा रहे। खासकर जो एक्सिस में इंडिया, उनका क्या ग्रहण लग गया उनकी पोलस्टर्स के दिमाग में कि उनको ठीक तरह पता ही नहीं चल रहा है। अब पहले इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन सही तरीके से, सटीक तरीके से बोल देते थे। उसके बाद अभी 2-3-4 इलेक्शन से उनका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है पूरी तरह ख़राब हो गया है। और जो सी वोटर के यशवंत देशमुख, वो भी बोल रहे थे कि कांग्रेस जीतेगा हरियाणा, तो फिर उसका उल्टा ही हुआ। स्टार्टिंग में जब वोटिंग का जो काउंटिंग का जब टाइम हुआ, 8 बजे स्टार्ट हुआ, जब बैलेट पेपर का, और जो बैलेट पेपर में आप लोगों को पता होगा कि जो गवर्नमेंट के जो कार्यशैली लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो सब लोगों ने भर भर के वोट दिया कांग्रेस को। और कांग्रेस 75 तक पहुंच गया था, और मैक्सिमम 75 तक पहुंच गया था, और 9 बजे तक वो 75 रहा। उसके बाद भी 75, 60 तक पहुंचा, 50 तक पहुंचा, 55, 56 तक पहुंचा। तो फिर पहले एक सुनामी था, फिर वेव हुआ। उसके बाद फिर वो जो बलून ऊपर लगा रखा था, उसको किसी ने पिन करके फोड़ दिया। वो हुआ स्टार्ट 10:30 बजे से। बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल नेक टू नेक हुआ। फिर अचानक से बीजेपी आगे निकल गया, और उसके टाइम में ही जो मिस्टर अमित मालविया और सुप्रिया श्रीनेत तो आई थी, क्योंकि उनकी जो मीडिया हेड हैं जयराम रमेश, वो बोल रहे थे कि ईसीआई का जो ये गिनती का तरीका है वो बहुत स्लो है, हम जीत रहे थे इधर, हमारा नंबर बहुत आगे है इधर, और वो नंबर ठीक तरह अपडेट नहीं कर रहे हैं, ईवीएम में प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, रोने लगे थे वो। और उनके जो पहले जो इलेक्शन स्टार्ट होने के टाइम 9 बजे तक जो बिल्कुल डोर नगाड़े, जो घोड़ा गाड़ी, सब कुछ उधर पहुंच गया था जश्न के लिए। वो सारे के सारे को भेजना पड़ा वापस 10:30 बजे तक। उससे पहले तो बिल्कुल दौड़ नगाड़े बज रहे थे, जलेबी वलेबी दे रहे थे, और ये लड्डू बांटे कर रहे थे। तो फिर वो सब उल्टा हो गया, और बिल्कुल सुनसान बन गया सब कुछ, शमशान घाट जैसा सुनसान हो गया पूरा जगह 10:30 तक। और उसके बाद इन लोगों का पता ही है आप लोगों को, कांग्रेस वालों का, जब भी हारने लगते हैं ईवीएम बोलते रहते हैं। और ये जो कांग्रेस के लोग बोलते रहते हैं कि बीजेपी का जो मिस्टर अडवाणी है, वो भी ऐसे ईवीएम बोल रहे थे स्टार्टिंग में, तो फिर आप हमको गलत नहीं बोल सकते इस पर। तो फिर आप लोगों को दिखाई दिया होगा, अब जब नरेंद्र मोदी जब से आए तब तक ईवीएम कभी बीजेपी ने इसका बहाना कभी नहीं लिया है, नरेंद्र मोदी के टाइम तक से स्टार्ट होते। तो फिर ये ईवीएम का कोई बहाना, एक स्पष्ट बहाना नहीं है। और इस इलेक्शन में जो एक गलती की है, जैसे राजदीप सरदेसाई और ये जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ये जाट बहुल क्षेत्र में जाके, और जहाँ इन लोगों को लग रहा था कि पूरा का पूरा भूपेंद्र हुड्डा का जो गढ़ है ना, उधर जाके ये वीडियोस बना के खाना वाना खा के आते थे, और बोलते थे कि बीजेपी इज़ गोइंग टू गेट 15 सीट्स, 18 सीट्स, 20 सीट्स। तो फिर इन लोगों का ये अनुमान बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि उधर पूरी तरह जो एक रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ है, इंडिया में जो रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ है ना, जो एक कांग्रेस की 99 सीट के बाद कांग्रेस का इतना ज़्यादा हिम्मत आ गया ना इन लोगों के पास, कि ये सारे जगह जाके हिंदुओं को गाली देने लगे। और जो 2014 से पहले जो इनका एक चेहरा था ना, वही चेहरा सब लोगों को दिखाने लगे। उनका जो पहले लग रहा था, इन हिंदुओं को लग रहा था, जो दलित भी थे, कि 2024 इलेक्शन में कि ये हमारा आरक्षण लेंगे, फिर पता चलने लगा ये झूठ बोल रहे थे। इनका खटाखट स्कीम भी झूठ है, सब कुछ झूठ है। और ये झूठ एक बार बोल सकते हैं आप लोग इलेक्शन के लिए, 3 बार ही नहीं चलता है। इधर एक बार ये झूठ चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता। तो फिर उस टाइम बीजेपी की गलती हो गई थी 400 पार। इधर इन लोगों की गलती हो गई थी, हम 60 पार, 70 पार होंगे हम। तो फिर ये पार जो नंबर का एक घमंड था ना इन लोगों का, वो घमंड को पूरी तरह चूर और निस्ता नाबूस किया है बिल्कुल। जो एक गवर्नमेंट है जो बीजेपी को जिता के, जो सब लोगों ने जिताया है। इधर मैं बोलूँगा कि हिंदुत्व का वोट है ये, जो कटेंगे तो बटेंगे,
बटेंगे तो कटेंगे का वोट है ये जो एक हिंदू अस्मिता का वोट है। वो हिंदू लोग बोल रहे हैं कि आप कैसे बोल सकते हो हमारे राम मंदिर के बारे में कि उधर नाच गाना हो रहा है, आप कैसे बोल सकते हो हमारे जो लड्डू है तिरुपति लड्डू के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आप ये वफ़ के ऊपर आप इतना ज़्यादा चिल्ला चाटी क्यों कर रहे हो, जो अमेंडमेंट बिल है आप ये सब क्यों कर रहे हो, उसके ऊपर हो रहा है। ये मैं बीजेपी के सपोर्टर्स को भी बोलूँगा, बीजेपी के लोगों को भी बोलूँगा कि ये रिलीजियस कंसोलिडेशन हुआ है। सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज़ जो हैं जिन्होंने वोट किया है बीजेपी के लिए वोट किया है वो हिंदू बन के वोट दिया है, उन्होंने कास्ट में वोट नहीं दिया है। और उधर भ्रष्टाचार भी बहुत था और ये जो एक डर था ना, भूपेंद्र हुड्डा जाट के लीडर नहीं थे, वो एक सामंती सोच के लीडर थे और उनका सामंती सोच ये था कि उनके लोगों को ही जॉब मिलेगा। वो क्या बोलते हैं ये जो कास्ट है उसके ऊपर वोट नहीं दे रहे थे, वो अपना लोगों को वोट देंगे, वो क्या बोलते हैं जॉब देंगे और ये पर्ची वर्ची से देंगे, पैसे रिश्वत से देंगे। तो फिर लोगों को पता चल गया कि ये आएंगे तो फिर हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर उस डर के कारण भी दिया लोगों ने वोट। और बीजेपी को ये जो कास्ट वास्ट का एंगल को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए और डेवलपमेंट का भी है, पर डेवलपमेंट का इतना ज़्यादा नहीं है जितना ये पोलराइजेशन रिलीजियस हुआ है। और कटेंगे तो बटेंगे, तो फिर ये जो हमारा जो कास्ट डिवाइड करने की कोशिश कर रही थी ये कांग्रेस की जो एक आईटी सेल है, पूरा उनका जो एक स्ट्रक्चर बना के रखा है उन्होंने, जो 2024 इलेक्शन का 99 सीट के बाद इनको लगने लग रहा था कि ये बिल्कुल आसमान में उड़ के बिल्कुल ठीक तरह उड़ रहे थे और उनको लग रहा था कि ये तो एक बार हो गया, हमारे साथ दलित आ गए, हमारे साथ थोड़े से ओबीसी आ गए, तो फिर जो अभी दूसरा ये हरियाणा इलेक्शन है इधर भी हमारे साथ ही रहेंगे, वो लोग पछताएंगे नहीं। आप लोगों को पता है, सब लोगों को पता है कि अगर एक बार ही ऐसे कांग्रेस लोगों का जो कार्यकाल देखने लगे ना लोग, जो एक गुंडागर्दी देखने लगे ना, तो फिर लोगों को पता चल जाता है, इन लोगों का चेहरा दिखने लगता है। और ऐसे ही करना चाहिए जो महाराष्ट्र में कि अगर ये शरद पवार ये उद्धव ठाकरे आ गए तो फिर क्या करेंगे, ये तो पूरी तरह मुसलमानों का पार्टी बन चुके हैं। तो फिर ये सब बीजेपी को दिखाना चाहिए, यूपी में भी यही दिखाना चाहिए। ये बोलते थे ना ये 2022 में, हाँ अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, तो फिर लोगों को डर लगता है ऐसे स्लोगन से, क्योंकि ये जब लोग आते हैं तो फिर गुंडागर्दी और से आते हैं, गुंडे लोगों को लेके आते हैं, तो फिर यही बोलना चाहिए। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत ही मज़ेदार इलेक्शन था इस टाइम का इलेक्शन, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि जो वीडियो आप जब भी ड्रॉप करें तो सबसे पहले देख सकें। जय श्री राम, राम राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय